quello che succede Bolzano a e Piazza Gaza Bartoli. è un ghetto بہت سارے e protesti che موجود vi ہیں. stanno 2 Abbas è milioni di persone. Al-Qaim 2 Association milioni di persone Bolzano میرانو کے نائب صدر ہیں, وہی موجود ہیں. ان کے آنے کا مقصد پوچھتے ہیں اور ان سے کچھ سنجیدہ سوالات بھی کرتے ہیں جو کانفلکٹ ہے اسرائیل اور فلسطین. bombardano بس اب یہ بتائیے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ che vogliono distruggere la memoria storica del popolo palestinese. La memoria storica, la memoria storica hanno tentato in tutti i modi di distruggerla, distruggendo i villaggi palestinesi e facendo dei patti a loro posto, così una buona parte degli israeliani è convinta che lì non ci fosse nessuno, che quello era uno spazio vuoto e che cavolo vogliono questi palestinesi, se stavano un po' in giro. L'altro giorno اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اکثر کہتے ہیں, اکثر لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی 1400 سال پہلے جو واقعات ہوئے آج آپ اس پہ روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ سر اس کا یہ فائدہ یہ جو آج آپ کو ہم لوگ ادھر اکٹھے ہیں, اگر میں امام حسین کے میں شریک ہونے کے لیے مجالس میں جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر امام حسین کی کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مظلوم کی آواز بننا ہمارا. تو اس وقت موجودہ وقت میں جس موقع پہ جس وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں میں اور آپ 2021 میں, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم کون ہے جس کے اوپر ظلم وہ یا کشمیر یا فلسطین. تو اگر میں امام حسین کی مجالس میں بھی بیٹھوں, امام حسین کو روں بھی, لیکن جو موجودہ دور کا مظلوم ہے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہ کروں تو میری وہ ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں ہے. اچھا, اس طرح کے مینیفیسٹیشن جو ہوتے ہیں اس میں ہم سارے یکجہتی کے لیے شامل ہوتے ہیں, کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ سر حدیث شریف تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ برائی کے خلاف لڑو 3 طرح سے لڑو. اگر طاقت رکھتے ہو تو زور سے لڑو, برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو, بول کے ظالم کو کہو کہ رک جا, ظلم نہ کر. اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے دل میں اس ظلم کو آپ برا جانیں. تو سر ہم اگر ہمیں یہ اللہ پاک توفیق دے ہم جسمانی طور پہ بھی مظلوموں کے کام آئیں, لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ اس طرح کے مینیفیسٹیشن برپا کر کے تو ہم کم از کم ضمیر انسانی کے اوپر ایک دستک تو دے رہے ہیں. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کم از کم تاریخ ہمیں یہ تو کہے کہ کل کو وسیم اور عباس اور مدثر کے بچے یہ تو کہیں گے کہ یار ہمارے بڑے مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے, ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے. اور اگر آج ہم ان مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, گھر میں بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں, تو کسی کو کیا پتا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم. تو مظلوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا میری نظر میں بہت اہم ہے, بہت قیمتی ہے, اور اس سے مظلوم کو ضرور ہمارے کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ حماس نے اگریسولی اٹیک کیا اسرائیل پہ, جس کے نتیجے میں اس کو جنگ بندی کے لیے راضی ہونا پڑا. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں جب روس باہر نکلا مسلمان اس سے جو ایک امپیکٹ بنا, اس کا بھی اثر ہوا کہ یہ جنگ بندی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اس دور میں یہ جو مظاہرے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے؟ سر جیسے میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں فوجی طاقت کے حوالے سے, چاہے وہ حزب اللہ ہو چاہے وہ حماس ہو, ان دونوں قوتوں کو ہمارا سلام ہے جو ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جسمانی طور پہ ان کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں. لیکن سر آپ اگر کمپیریزن دیکھیں, آپ اگر طاقت کا توازن دیکھیں تو کیا یہ حماس اور حزب اللہ یہ تنہا اسرائیل جیسی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ اسے نہیں مجبور کر سکتے ٹیبل ٹاک پہ لانے کے لیے. بے شک اس کے لیے تھوڑا نقصان بھی بہت زیادہ ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ, کیونکہ یہ جذبہ ایمانی ہے ہمارا. لیکن سر یہ آواز جو سول لوگوں کی جو آواز ہے, جو عام لوگوں کی آواز ہے, اور اس میں آپ نے بڑا خوب کہا کہ صرف مسلمان نہیں, دیکھیں آپ کو جیسے ہم کہا کرتے ہیں نا کہ امام حسین کا غم منانے کے لیے آپ کو شیعہ سنی ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو انسان, آپ کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح فلسطین اور کشمیر اور یار کوئی بھی مظلوم ہے,
सर मजलूम के साथ खड़ा होने के लिए आपको उस मजहब का होना जरूरी नहीं है, उस फिरके का होना जरूरी नहीं है, इंसान होना और आपका ज़मीर जिंदा होना। पूरी दुनिया में जिनके ज़मीर जिंदा है चाहे वो ईसाई हैं। और मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि हम तो कह जाते हैं ना जनरली इज्तिमाई तौर पर यहूदी, हमें ये बात भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे यहूदी जो हैं वो फलस्तीन के साथ यकजहती का ऐलान कर रहे हैं, इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करें। इसका मतलब है कि हमें स्टेट ऑफ इसराइल करना चाहिए। स्टेट ऑफ इसराइल है वो अपने तौसीफ सल्ताना अज़ाइम के लिए सारा जुल्म कर रही है। ये इसको हम किसी एक मजहब के ऊपर थोप नहीं सकते कि ये यहूदी हैं, ईसाई हैं या मुसलमान। 30 anni fa, quando io ho visto il campo इसराइल जो है बाज़ अरब ममालिक को कन्विंस कर चुकी है, बहरीन है, फिर एमिरेट्स है, फिर उसके बाद हम सूडान और मोरक्को का भी नाम सुना है, तो वो अपने प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। फलस्तीनियों के नमाज को नुकसान पहुंचे। सर आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया, लेकिन आप एक बहुत बड़े मुल्क का नाम भूल गए, सऊदी अरेबिया, जो मुसलमानों का किबला और काबा है। वो तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारा किबला और काबा है, तो उनकी तरफ जो उनका अमल होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हसास है मुसलमानों के लिए। और यूएई और ये सारे सर बिलाशुबा देखें तारीख में जाते हुए आप देखें कि यूनान में मौजूदा यूनान उन्होंने एक मुकदमा चलाया उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला पीने पे मजबूर किया। फिर उन्होंने हेयरिंग की, पूरा मुकदमा चलाया। मुकदमे के बाद उन्होंने सुकरात को बरी किया और जिन लोगों ने उसको मजबूर किया था उनको कन्विक्ट किया, उनको मुजरिम गर्दाना, उनको सजाएं सुनाई। अब देखें हजारों साल बाद, ये कबल मसीह की बात, हजारों साल बाद किसी ने पूछा ये यूजलेस एक्सरसाइज आपने की है, फर्क क्या पड़ेगा? ना तो सुकरात वापस आएगा ना वो जालिम। सर उन्होंने यही कहा कि देखें इससे ये तो पता चलेगा कि हम सही के साथ, हम मजलूम के साथ, हम जालिम के साथ नहीं, हम गलत के साथ नहीं। तो सर जब आप थोड़ा सा साथ एक जालिम का देते हैं तो उससे डेफिनेटली मजलूम के काज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये तो मतलब जैसे हम पहले कह रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों की तो काज नहीं है, तो बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे जिसके मुसलमान का पूरी कौम जो एक जिस्म की मानंद है, एक हिस्से को दर्द हो सकता कहाँ है आज वो फीलिंग, वो एहसास आज कहाँ? तो फिर हम सिर्फ जुबान से मुसलमान होने के दावे मैं समझता हूँ कि उनके ये खालिस्तन अपने ज़ाती मफादात, उनके ये मादी मफादात हैं, बाकी और कोई बात। अवामी सतह से तो आप समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से तो उम्मीद नहीं है, इस्लामिक कौंसिल में वो हमेशा भी तो करते थे, वो करा तो इटली है, यूरोप है, उनकी तरफ से आप समझते हैं एक स्ट्रॉन्ग आवाज इंसानी बुनियादों पर। सर मैं ये समझता हूँ कि यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया जो बाइपोलर दुनिया थी, जो सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका और रूस के दरमियान में बढ़ी हुई थी, वो तो ख़त्म हो गया। यूनिपोलर दुनिया रही कुछ साल पहले तक। अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब चूँकि फौजी तौर पे तो ये ना यूनिपोलर है, ना बाइपोलर है, ना मल्टीपोलर है, लेकिन इसमें ये है कि यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा, यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। लेकिन मुझे अफसोस होता है यूरोप के लोगों के ज़मीन के ऊपर मुझे इत्मीनान है। जो इंडिविजुअल लोग हैं, मैं हर आदमी से जिससे भी मेरी बात होती है और आपकी भी होती होगी, वो लोग इंफरादी तौर पे इसराइल के मज़ालम की हमेशा मजम्मत करते हैं और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। लेकिन ना तो इनकी हुकूमतें और ना यूरोपीय यूनियन मेरे ख्याल में वो कुछ नहीं किया जो ये कर सकते थे, जिसकी ये इस्तिताअत रखते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, तुर्की को, ईरान को, दूसरे मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि ये डिप्लोमेटिकली, चूँकि हम तो बहुत कर सकते हैं। अभी एक स्टार्स nella recente elezione alla Palestina ci sono stati circa 1913 254 morti, di cui 67 bambini, dei 66 bambini 11 di loro soffrivano di disturbi mentali e malattie dopo che arrivano dei missili. Immaginate al loro posto, prendendo la tua terra, uccidendo i tuoi figli, insultando le tue donne, e tu sei ucciso, arrestato vivo in mezzo all'insulto.
insulti, poi distorgono la tua immagine, ti accusano di terrorismo. Siete tutti tristi adesso, ma quello che non sapete è che siamo tutti complici di questo crimine. Li paghiamo per comprare armi, per uccidere i palestinesi, siamo noi che li aiutiamo nel genocidio. Perché acquistiamo della società che finanziano Israele? Tu sei davvero solidale della Palestina, ma la sola simpatia non basta, e le parole da soli non bastano. Stai davvero cercando di aiutare la Palestina a boicottare तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक पॉपुलर डिसीजन भी है और एक ये ज़रूरी डिसीजन भी है और एक राइट डिसीजन भी है। लेकिन पाकिस्तान में कोई हुकूमत भी इसराइल को तस्लीम करके मेरे ज़ाती ख्याल में पाकिस्तान में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। और जिस भी सियासी जमात के दौर में ये काम हुआ वो पाकिस्तान में तो अपना मुस्तकबिल खत्म समझा, क्योंकि पाकिस्तान दिल फलस्तीन के साथ पाकिस्तानियों का एक जज्बाती लगाव है। अब देखें दुनिया में कितने मुसलमान मुल्क, कितने मुल्क हैं जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर द स्टेट ऑफ इसराइल। देखें पाकिस्तान का तो उसके साथ एक और सतह पे भी जो है ना वो मुकाबला है कि जैसे दुनिया कहती है कि वो अगर मज़हब के नाम पे दुनिया में सिर्फ दो स्टेट्स जो हैं रियासतें बनी, एक इसराइल है जो यहूदी है ज्यूइज़म के नाम पे बनी और पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पे बनी। तो अगर इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क उस देखें इसराइल अगर फ़लस्तीनियों के हक दे देता है, अगर उनके साथ जुल्म नहीं करता, मैं ज़ाती तौर पे मैं अमन का दाई हूँ, मैं ज़ाती तौर पे इस हक में हूँ कि पूरी दुनिया में पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और हर मज़हब को हर अक़लियत को जीने का हक होना चाहिए, वो किसी भी मज़हब से उसको जो भी ख्यालात हैं। और यही हमारे दस्तूर में भी है, हमारे कायद ने भी यही कहा। पहली तकरीर में कायद आज़म रहमतुल्लाह ने यही कहा था कि आज से रियासत का आपके मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहे मसाजिद में जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, चाहे गिरजे में जाएं, ये आपका अपना और आप आज़ाद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इंसान को आज़ादी होनी चाहिए। इस सदी में इतनी जब जदीद हो गए हम, जब इंसान आसमानों पे कमंद डाल रहे, जब इंसान चाँद और मरीज़ को मुसफ़र कर, तो अभी तक हम ज़मीन के मसाइल से बाहर नहीं हैं। अच्छा बात साहब, आज के इस मुजाहरे में बिलखसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आपका क्या पता? जी मैं मालूम तो कट ऑफ करने में देखता हूँ कि पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत हैं। मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तानियों की शमूलियत को बहुत ज़्यादा देख रहा था। आपने ये स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, आपकी तरफ से हमें ये दावत मिली, फिर मुदस्सर शाह साहब की तरफ से दावत मिली, मैंने बहुत दोस्तों को दावत दी, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी नुमाइंदगी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कल को ये आग फिर भड़क उठे। इस तरह का कोई फिर स्टैंस होता है, एडवेंचर होता है इसराइल की तरफ से, तो आप समझते हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए? सर हमें ये नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी हुकूमतें उस वक्त एक्टिव हों जब इसराइल इस तरह की कोई कार्रवाई करे। देखिए हमें हर आदमी को अपनी सतह पर काम करने की, देखिए अगर हम अपने लोगों को आज मोटिवेट करके facciamo sentire la nostra voce nuovamente, तो आप क्या समझते हैं e facciamola sentire a chi sta passeggiando per questa piazza che vede solo delle bandiere sventolare, ma non sa perché siamo qua, non sa che noi siamo qua per il genocidio, e non è un'esagerazione che sta accadendo oggi nella terra palestinese, un omicidio, un genocidio per mano di uno Stato sionista che dice che no perché è un suo diritto. E io dico, se tu per una terra devi attaccare, devi lanciare bombe, forse quella terra non è tua, ma forse, eppure queste persone attaccano, criticano, abusano e poi ci vengono a dire che i palestinesi sono oppressori. A queste persone che stanno passando ti invito ad andare a cercare sta facendo lo Stato illegittimo di Israele a queste povere persone che non hanno